सो हम लोगों ने ऑलरेडी ये टॉपिक कर लिया है. वी विल बी डिस्कसिंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इनमें से क्वेश्चंस जिस तरह से हम लोगों को दिया हुआ है हम उसको उसी तरह से ही टैकल करेंगे एंड विल ट्राई टू यूज दोज कॉन्सेप्ट्स जो हमने ऑलरेडी अपने चैप्टर के दौरान पढ़े हैं. नाउ इफ वी सी क्वेश्चन नंबर 1 हियर, this is of 2019. So A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on top of A, the weight increases by 60%. How much weight will reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of A? Okay. तो देखिए जी, इसमें ऐसा है कि if B is placed on the top of A, the weight increases by 60%. It is only possible if B is 60% in weight of A. Then यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं वैसे ही है कि हम लोगों ने जैसे हमने किया था ना, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 60%, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है. पहले ए का वेट हम मान लेते हैं is 100 and when B is placed on it, it increases by 60% and this is the combined weight of A and B. So it becomes 160. And when we remove this 60 kg weight from here, when we remove 60 kg weight from here, the weight has again come back to 100. So how the question is being asked, but concept was same. So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 60 का डिक्रीज करेंगे on 160 into 100. If we see, this is 3, this is 8, and this is 37.5%. This is the answer. The same question can be asked कि like हमें ये question इस तरह से भी पूछा जा सकता है या बोला जा सकता है, something like this. If A salary is 60% more than B salary, by what percent B salary is less than A salary? ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे बोला जा सकता है. तो सेम क्वेश्चन है, अगेन वही है कि अगर हम लोग B की सैलरी को 100 मान लें, the question is same, only the language is different, then it increases to 160 because increase is of 60 or 60% more is there, and then we have to come back to 100 again. So procedure is altogether same. The only difference is कि हमारे पास यहाँ पे language अलग है, rest everything is same. So this was the question asked in 2019. एक और आगे करेंगे. Let us move ahead. So very simple question. Again, this question was asked in 2019. हमारे पास बोला गया है when a runner was crossing 12 kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometer was the runner supposed to run the event? Very simple. Only we just have to give 80% of total is equals to 12. That's it. And just for the sake of calculation, we just ease it out. 4 upon 5, 4 3s are 12, and total is 15. So
हम लोगों को जो है ना, ये जो आपस में एक दूसरे को ये लोग कैंसिल कर सकते हैं. लाइक आई डिड इट in the same very step. 4 3s are 12. I did it in the same very step, so it can be done. So we got t is equals to 15. Again, a simpler one. Let us do another one. Raju has rupees 9,000 with him and he wants to buy a mobile handset, but he finds that he has only 75% of the amount required to buy the handset. Therefore, he borrows rupees 2,000 from a friend. Then, okay, again same question है, same type का question है ये. again हमारे पास जो हमें ध्यान देना वो यही है कि 75% of total cost is 9,000. That is the thing. जो भी मोबाइल फोन की टोटल कॉस्ट है उसका 75% is this. This is 3 and 4. This is 3 3s are, and total value of the mobile phone is 12,000. He was having 9,000 with him. He borrowed 2,000 rupees and he's still short with rupees 1,000. So what will be the answer? Raju has enough money to buy the handset and he will have rupees 100,000 rupees. No, Raju has exactly that. Raju does not have enough amount to buy that. So again, A part is the answer for us because he is short of rupees 1,000 here. He is short of rupees 1,000, right? So some people may do it like looking at the 1,000 and they may tick it without reading whole of the option. So that is required to be done. So you don't have to do this. आपको ये नहीं करना है. आपको सभी options को ध्यान से पढ़ के ही आगे चलना है. Right? I hope it is clear to everyone. This was very simple actually. We have got two questions here. Number one, from 2019 and the next one is from 2020. So 2019 वाला question बोलता है, in an examination A has scored 20 marks more than B. If B scored 5% less marks than A, how much B scored? Okay. A has scored 20 more marks than B. Okay, means A minus B is 20. And if B has scored 5% less marks than A, इसका मतलब 95% of A marks is equals to B. Right? So what does it shows? Like if we see here, so हम लोग यहाँ से directly ही बात कर सकते हैं कि whatever the marks, ध्यान से सुनिएगा, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 5% of A's marks is equals to 20. A has got 400 marks and B has got 20 marks less, so B has got 380 marks. So we even don't require these two things. हम लोग इसको directly, ये चीज भी नहीं हमें चाहिए, हम इसको directly इस तरह से लिख सकते हैं because हमारे पास ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है A has got 20 marks more than B. Okay, that's we got. And B has got 5% less marks than A. तो comparison किसके साथ है? A के साथ. So इसका मतलब 5% less marks of A is equals to 20. And from here we get the marks of A and then finally we can get the marks for B as well. Now this is question number 47 है मेरे इसमें, ये 2020 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है, a shop owner offers the following discount options on an article to a customer. Number one, successive discounts of 10% and 20%, and then pay a service tax of 10%. Okay. Then successive discount of 20% and 10%, then pay a service tax of 10%. Pays a service tax of
10%, then successive discounts of 20% and 10%. So which is the best option for the customer? Okay. Just a minute. I actually took it in a wrong way. A has got 20 marks more than B. Okay, A has got scored 20% more than B. Whatever the marks B has got, A has got more marks. इसका मतलब B has got less marks than A. It means A minus B is 20. जो हमने पहले लिखा आप उस बात को समझिए. Then it says if B has scored 5% less marks than A. अब B के मार्क्स जो है ना वो A से 5% लेस हैं. A के जितने भी मार्क्स हैं B के मार्क्स 95% ऑफ A's मार्क्स हैं. राइट. अब हम लोग इसको दो तरीकों से बात कर सकते हैं. या तो मैं इसी चीज को इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस बी हियर एंड आई विल गेट द थिंग्स. अदरवाइज वी कुड अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर हम लोग इसमें करते हैं तो चलिए आपकी कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी. A minus 95% of A is 20 and this implies that 5% of A is 20. And from here we got 5 4s are 20. A is equals to 400. That is how we have got. But यहाँ पे हमें ये भी बोला गया है कि A has scored 20 marks more than B. So हम इसमें से 20 माइनस कर दें तो हमें B के मार्क्स मिल जाएंगे. This is one way of doing the things. लेकिन पिछले केस में जब हमने किया तो मैंने इसको एक ही साथ डायरेक्टली वो लिख दिया. What I did there as simply अगर A has scored 20 marks more than B, मतलब जो उन दोनों का डिफरेंस है वो 20 मार्क्स है, but in terms of percentage it is 5% of A's marks. यही बोला गया 5% less than A. In terms of percentage it is 5% of A. And in terms of figure it is 20. So 5% of A is 20. We get the A's marks directly as 400 and then B marks has to be less by 20, so it is 380. तो ये हम डायरेक्टली इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं. चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं. ये बोलते हैं शॉप ओनर्स ऑफर the following discount options on an article: successive discount of 10% and 20%. Successive discount of 10% and 20% is minus 10 minus 20 plus 10 into 20 upon 100. ये वैसा ही है जैसे हम किसी वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं 2 times. So it is and this gives to us minus 30 plus 2 is 28% discount, right? And हमारे पास ये बोलता है successive discounts of 20% and 10%. It hardly matters because ये भी हमारे पास ऐसे आएगा minus 20% and minus 20 minus 10 plus 20 into 10 upon 100. Minus 20 minus 10 plus 20 into 10 upon 100. So this value is again same. This is again 28%. So 20 पहले लिखा जाए 10 बाद में लिखा जाए या 10 पहले लिखा जाए 20 बाद में किया जाए, it doesn't matter to us at all. It remains the same. ठीक है. And then हमारे पास first and second option is altogether same. ये दोनों same है एकदम से. Successive discounts of 10% and 20% लें या 20% and 10% लें, it does not matter at all. It always remains same. And then pay a service tax of 10%. Now, service tax of 10% is always on the total bill. मतलब service tax जो है वो हमेशा बिल के ऊपर पे किया जाता है, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर नहीं पे किया जाता. तो it is always on the actual bill. तो इसलिए डिस्काउंट का सर्विस टैक्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है. इसलिए वो सर्विस टैक्स चाहे पहले पे करे चाहे बाद में पे करे,
It does not matter. So it is offering the same options to the customer. So all are equally good for the customer. So D option is the answer. बट इसमें हमने एक चीज और सीखी कि अगर हमारे पास दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, लाइक 10%, 20%, तो हाउ वी कैन, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है एक डिस्काउंट के ऊपर एक और डिस्काउंट. इट मींस आप एक शॉप पे गए एंड उसने आपको बोला कि आप मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, तो ये लीजिए 10% डिस्काउंट आपका और 20% डिस्काउंट आपका, वट एवर. चलिए वो बोलता है कि आपके लिए सर 20% डिस्काउंट, या मैम आपके लिए 20% डिस्काउंट. तो आपने उसको बोला यार ये तो आप सबको दे रहे हो, हम तो आपके रेगुलर कस्टमर हैं, हमें तो कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए. देन कहता है ओके ओके सिस्टर, मैं आपको 10% डिस्काउंट और देता हूँ. तो दैट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इज अ सक्सेसिव डिस्काउंट. आपको 100 रुपीज की चीज ऑलरेडी 80 में मिल चुकी है, लेकिन आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें और डिस्काउंट चाहिए. देन नेक्स्ट डिस्काउंट वो 80 रुपीज के ऊपर देता है 10% का, एंड यू गेट द थिंग फॉर 72 रुपीज. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट. अब जैसे हम लोगों ने देखा कि जब दो डिस्काउंट्स दिए हैं, जैसे हमने 10% एंड 20%, तो हमें वही लेना है कि हम लोग इसकी वैल्यू को सक्सेसिवली डिक्रीज कर रहे हैं. एंड वी यू नो दैट कि जब सक्सेसिवली कोई चीज डिक्रीज होती है तो हम लोग -x - y + xy/100 लेके चलते हैं. बट बहुत बार ना लोग ये भी पूछते हैं सर कि अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि 10%, 20% एंड 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिले तो क्या होगा? वैसे ऐसे होता नहीं है कभी भी, चलिए फिर भी हम मान लेते हैं अगर ऐसा होगा. तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास दो अलग अलग ऑप्शन है. अगेन आप इन दोनों को पहले लीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे कि हमने देखा वो आया -28%, एंड देन उसके बाद 30 वाले को लीजिए. -28% हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट कर लिया हुआ है, तो आप उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज करेंगे. -28 - 30 + 30 × 28/100. यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये तो -58% आ गया जब भी हम इसको ले रहे हैं. इसमें 0 एंड 0 कैंसिल किया. अब आपने फर्दर कैंसिल नहीं करना है, ना ही एलसीएम लेना है, बिकॉज कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है उससे. हम क्या करेंगे? 28 3 = 84 upon 10. This makes us 58 + 8.4, and this makes the final thing to us as 49.6%. So this is the final answer अगर आपके पास 3 successive discounts given हो. This is one way of doing it. आपने लेकिन इसको क्या किया? 3 successive discounts को आपने 2 स्टेप मेथड से किया. आपने पहले कोई भी दो ले लिए, तो मैंने 10 और 20 इसलिए लिया क्योंकि मैंने उसका वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, तो मैंने टाइम सेव किया. और उसके बाद आप जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों का, जैसे यहाँ 28% आया, उसको थर्ड वाले के साथ ले सकते हैं. सिमिलरली आप 10 और 30 भी ले सकते हैं पहले, आप 20 और 30 भी ले सकते हैं पहले. इट्स अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू. ये तो हो गया एक तरीका. दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इज समथिंग लाइक दिस. आपकी कोई चीज 100 रुपीज की थी, आपने उसमें 10% डिस्काउंट दिया, वो 90 रुपीज में आ गई. फिर आपने 20% डिस्काउंट दिया 90 के ऊपर, तो वो 80 पे आ गया. तो आप इसको ना डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कि 100 रुपीज की चीज के ऊपर आपको जब 10% का डिस्काउंट मिला, तो आप उसकी वैल्यू 10% डिक्रीज कर रहे थे, वो 90% पे आ गई. देन वो 20% का फर्दर डिस्काउंट लिया तो वो 80% पे आ गई, एंड देन 30% का फर्दर डिस्काउंट लिया तो वो 70% पे आ गई. तो आपने उनकी वैल्यूज को रिड्यूस कर दिया. लेट अस सी कैसे रिड्यूस किया. दिस एंड दिस गॉन, दिस एंड दिस गॉन. तो आपके पास ये बन जाएगा 9 8 = 72, 72 7 = 504. इट कम्स टू बी 50.4. अब ये 50.4 तक आप उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर चुके हैं. तो डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट इज सिंपली 100 - 50.4. That will again give you 49.6%. So this is how you can find out answers like this. So you are having multiple options of finding the same answer. आप इसको देख सकते हैं.
शाबाश, अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछिए, फिर आगे चलते हैं। So हमारे पास क्वेश्चन इज, इन अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 40% men and 30% women are married. What is the percentage of married adult population if no man marries more than one woman and no women marries more than one man and there are no widows and widowers in the city? जो ये सिचुएशन दी गई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, हर एक बंदे ने अपने ही सिटी के मेन एंड वुमेन के साथ मैरिज किया है, किसी ने भी दूसरी सिटी के मेन या वुमेन के साथ मैरिज नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जैसा कि ये हमारे पास सिचुएशन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बोलता है कि 40% ऑफ मेन एंड 30% ऑफ वुमेन आर मैरिड। तो इसने एक्चुअल में ये जो यही कंपैरिजन है कि भाई 40% ऑफ मेन, बिकॉज दे आर इक्वल, बिकॉज हर एक मैन ने एक विमेन के साथ ही मैरिज किया है, एक मैन ने एक विमेन के साथ ही मैरिज किया। इसने ये बोला है कि नो मैन मैरिज मोर देन वन विमेन एंड नो विमेन मैरिज मोर देन वन विमेन, एंड इसका मतलब यही है कि 40% ऑफ मेन इज इक्वल्स टू 30% ऑफ विमेन। मीन्स अगर हम लोग देखें तो मेन की पॉपुलेशन इज 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विमेन। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का एक पॉइंट हमें मिल गया। हम लोग कहते हैं कि लेट विमेन इज 400, तो ऑफ कोर्स मैन विल बिकम 300, तो टोटल पॉपुलेशन इज 700। so therefore 30% of women is 30% of 400, that is 120, and similarly तो ये आ गया हमारे पास मैरिड विमेन, एंड ऑफ कोर्स 120 हमारे पास मैरिड मैन होंगे। तो हमारे पास टोटल जो पॉपुलेशन है, इसने बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन, तो आपके पास मैरिड पॉपुलेशन कितनी है? मैरिड पॉपुलेशन इज of 240 people out of 700. into 100, आप इसको कैंसिल आउट करिए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस विल बी 7 3 are 21, 7 4 are 28, 34 2/7%। अभी यहाँ पे क्या है, हम एक्चुअल टोटल पॉपुलेशन इन दिस केस 100 भी ले सकते थे, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 100 ले सकते हैं, बट मैंने 100 इस बार इसलिए नहीं लिया क्योंकि 100 वुड मेक दिस कैलकुलेशन बिट डिफिकल्ट। दैट इज वाई मैंने वो लिया जो इन दोनों को सुटेबल था। सो दैट इज आई टुक 700, बिकॉज अगर हम लोगों के पास बोलता कि टोटल पॉपुलेशन 100 है, तो ऑफ कोर्स हमें मेन की पॉपुलेशन निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता, बिकॉज उस केस में हमारे पास सेफ जो पॉपुलेशन होती वो फ्रैक्शन में आ जाती।
इसलिए मैंने जो टोटल पॉपुलेशन है वो 700 लिया, बिकॉज इट इज द एडिशन ऑफ 3 and 4 पार्ट्स. सो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या दिया था, 40% of men is equals to 30% of women. It means 4 parts of men is equals to 3 parts of women. So that is the thing which was given to us. तो हम लोग इसलिए जो टोटल पॉपुलेशन है वो हम लोगों ने दोनों का एडिशन लिया, डेट इज 7 पार्ट्स ले लिया. दैट इज व्हाई वी हैव टेकन 700. हम 70 भी ले सकते थे, हम 7000 भी ले सकते थे, तो उसमें आपको जो भी कंफर्टेबिलिटी है वो किया जा सकता है. बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि हम लोगों ने 100 क्यों नहीं लिया, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था. सो दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन 2020. तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलते हैं आगे. In a class, 60% of students are from India and 50% of those are girls. Okay. So जितनी भी class है, let's say there are 100 students in that. अब इसको हम 100 लेके चलते हैं. There are 100 students in the class. 60% are from India. 60 students are from India. And if 30% of Indian students are girls, इसका 30%, इसका 30% आएगा 30% of 60. If you see, 30% of 60 is 18. So 18 girls are Indians and rest of the are boys. These are boys. So we can say that 42 of them are boys. Okay, fine, got it. Then इसने हमसे बोला, in a class 60% from India and 50% of the students are girls. If 30% of the Indian students are girls, then what will be the percentage of the okay student are boys, right? अब हमारे पास 60 स्टूडेंट वर फ्रॉम इंडिया, बट एक और बात क्या है, एक और बात यह है कि आउट ऑफ दिस 100 स्टूडेंट 50 आर गर्ल्स. 50% मीन्स 50 आर गर्ल्स एंड उनमें से 18 आर इंडियन गर्ल्स, राइट? अब इसने हमसे क्या पूछा, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज. ओके, 40. देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया ऑफ कोर्स 40 students are foreign students, 18 are girls and 42 are boys here. अब हमारे पास क्या है, गर्ल्स अगर हम लोग बात करें तो देर आर 32 girls which are foreigners and out of 50 boys, 50 boys में से हमने देखा कि 42 are Indians. It means 8 boys are foreign boys. अभी हमसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज. ओके, सो हमारे को इतना पता लग गया भाई, 40 लोग जो हैं वो फॉरेनर्स हैं और उसमें से 8 बॉयज हैं. सो परसेंटेज ऑफ बॉयज वर 88 out of 40 into 100, which is 1/5. That is equals to 20%. So we get 20% as the answer. Let us see once again. टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने 100 ले लिए. देन उसमें से इंडियंस थे 60%, सो दीज आर इंडियंस एंड 40 वर फॉरेनर्स. आउट ऑफ दोज 60 स्टूडेंट्स 30% वर गर्ल्स एंड 70% वर बॉयज, सो 42 वर बॉयज. अब हमारे को बताया गया है कि 50% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स, इट मीन्स 50% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज, सो 50 बॉयज वर देयर, out of which 42 were Indian, 8 were foreigners. 8 were foreigners, and that is why we have took 8 out of 40 means how much percentage of foreign students were boys. So we have got 20%. Actually this is not the question of percentage, but ये concept हमने percentage में पढ़ा था, तो that is why I thought कि मैं एक बार ये भी आपके साथ share कर लूं. In a group of 120 persons, 80 are Indians. The number of Indians are 80. And rest are foreigners. Okay, number of foreigners are 40. Further, 70%
in the group can speak English. Number of Indians who can speak English is. Now, थोड़ा सा डेरोगेटरी है लेकिन हम अगर ये मान के चलें कि भाई जितने भी फॉरेनर्स हैं दे कैन स्पीक इंग्लिश, इफ वी कंसीडर दिस थिंग, जितने भी फॉरेनर्स हैं दे कैन स्पीक इंग्लिश, बिकॉज इसने बोला, इसने कोई छोर हमें पैरामीटर नहीं दिया, सो वी टेक इट लाइक कि जितने भी फॉरेनर्स हैं they can speak English because they have just given 70 persons in the group can speak English. So 40 are foreigners, तो मानते हैं कि they all can speak English, and rest of the 30 ठीक है, अगर हम ये मान के चलें कि all the 40 people, ध्यान से सुनिएगा, all the 40 people can speak English, then rest of the 30 people will be Indians who can speak English, अगर हम ये मान के चलें. बट अगर हम लोग ये मान के चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि इफ द पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश आउट ऑफ फॉरेनर्स आर लेस देन 40, देन दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 30, बिकॉज वो जो कमी है वो इंडियंस पूरी करेंगे, सो इट हैज टू बी ग्रेटर देन 30. तो दो ही सिचुएशन है, या तो पूरे के पूरे फॉरेनर्स इंग्लिश बोलेंगे तो देन वी हैव प्रिसाइजली 30 पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, और अगर हमारे पास पूरे के पूरे 40 लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, देन वी शुड हैव मोर देन 30 पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश. सो इन दिस केस माय आंसर वुड बी डी पार्ट. ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था. एक्चुअली आई थॉट कि ये एन ऑफ ए यूनियन बी वाला क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई आई ब्रॉट इट हियर, बट नेवर माइंड, हम लोगों को फिर भी एक चीज सीखने को मिली. सो लेट अस गो ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. चले जी, लेट अस सी अगेन. हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास है two numbers are x and y are 20% and 28% less than a third number z. Okay, so we just take, let third number be z. So therefore x should be 20% less. Third number z be 100. I take this as 100. So x would be 20% less 80, y would be 72, and now they are asking by what percentage is the number y less than x. Okay, difference between x and y is 80 minus 72. It is 8. एंड परसेंटेज लेस, देखिए जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा होता है ना उसको हम बेस में लेके चलते हैं. देन नंबर x, तो x वाज 80, सो इट इज 8 अपॉन 80 इंटू 100. इसमें मोस्टली लोगों को जो कंफ्यूजन आता है वो ये आता है कि हमारे पास हम किसको लेके चले, हम बेस में किसको रखें. सो बेस में हमेशा उसको रखना होता है जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं. तो यहाँ पे बेटा कंपैरिजन जो है वो किसके साथ है, x का साथ कंपैरिजन था, तो इसलिए हमने x को बेस में रखा. राइट, सो these were some of the questions of previous year and I hope that has definitely infused confidence in all of you. आपको लग सकता है कि अब आप ये इसको आराम से कर सकते हैं. राइट, सो जस्ट कीप ऑन डूइंग द वर्क, इसको अच्छे से करें. if you get any problem just come back to me, just tell me and we will solve it together. तो आज इतने रखेंगे, कल मिलते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन पे देखते हैं कि हमें क्या करना है. सर बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद. जय हिंद सर.